Hello students, how are you? You're welcome in your channel Physicswall. Today our topic NCERT Class 12 Chapter 10 Wave Optics का 10.63 Resolving Power of an Optical Instrument. Students, guess करिए आपके पास भी एक optical instrument है, eyes. So eyes are an optical instruments जो हमें God ने दिए हैं, but it has some fixed resolving power, magnifying power. So students, when we see the spectra of diffraction and interference pattern, then we cannot resolve perfectly the fringes, and we can say when two stars, the light from where comes in eyes, we cannot distinguish that the light comes from two stars or one stars, because our eyes some limitations. So to resolve the spectra distinctly fringes, we use to another optical instruments. Students, in 9th chapter you learn what is magnifying power of an optical instruments, telescope and microscope. What is magnifying power is 1 plus d upon f, या students कह देते हैं height of image to the height of an object, h e upon h o, या आगे माइनस v upon u आता था, m से डिनोट करते थे. ओके स्टूडेंट, सो बट इन दिस लेक्चर व्हेन learn the diffraction pattern and interference pattern, see the interference fringes. So to resolve the interference fringes, we also read the resolving power of an optical instruments. So students, when we see the diffraction and interference pattern by naked eyes, then sometimes we cannot distinguish bright and dark fringes position. We see as a spot of brightness nearly some dark, that is blur image of spot found when we see that the naked eyes diffraction and interference pattern. So to see that we use an optical instruments. So students, optical instruments have the resolving power. By use it we distinguish the dark and bright fringes. Students, in your exam ask the resolving power of an optical instrument. Some students write that the resolving power is the reciprocal of the limit of resolutions, and write that the theory cannot differentiate the telescope resolving power and microscope resolving power. So mass is cut. In Physicswall, you read better, learn better, and theory is better. Resolving power, you write the separate definition for microscopic resolving power and telescope resolving power. Nearly same, but आपको क्या पढ़ना है, मास अच्छे पाने हैं, तो क्या लिखेंगे, it is defined as the reciprocal of the distance between two objects. मतलब दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन इनवर्स ले लेंगे, विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप. इतनी आसान डिफिनेशन है. इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस between two objects which can just resolved when seen through the microscope, and it is given as the resolving power R is equal to क्या लिखते हैं 1 upon delta d. delta is the distance between two objects is equal to क्या है, इसको रखना पड़ेगा 2 mu sin theta upon lambda. इसको भी समझा देते हैं. अब which can just resolve का कंडीशन क्या है, which is can just resolve. स्टूडेंट समझिए, जब मान लिया दो आपके पास स्पेक्ट्रा है, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंजेस दो की बन गई. अब यदि एक इस ब्राइट फ्रिंज की, इसका एक नॉर्मल डार्क यहां बना लीजिए स्टूडेंट्स, और इसका इस वाले का ऐसे, ये इसके अबाउट द हो गई. तो दो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई स्टूडेंट्स, ये क्या है, डेल्टा डी. स्टूडेंट्स, दिस इज डेल्टा डी. दो मैक्सिमास के बीच में डिस्टेंस जो हुई वो कहेंगे हम डेल्टा डी. डिपेंड इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कोई आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, उस इमेज को आपने किससे देखा,
कॉन्वेक्स लेंस से। उस कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर क्या है 2a। दिस इज 2a स्टूडेंट्स का अपर्चर आपका इसका। और ये क्या बना रहा है, मान लिया दिस इज थीटा एंगल, दिस इज एंगल थीटा मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2a है अपर्चर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी स्टूडेंट साइन थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा अपॉन लैम्डा। तो इस समझ सकते हैं, ये आप लाइट इसको देख रहे होंगे, आईज से आप देख रहे होंगे इसको। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या कहलाता है, म्यू साइन थीटा इज न्यूमेरिकल अपर्चर। इसका साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। इसको थोड़ा सा याद करने पर, वेयर म्यू साइन थीटा इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। स्टूडेंट्स ये फिगर बना लीजिएगा, 2 गोले बना लीजिएगा, 2 छल्ले बना लीजिएगा और दूसरे के बीच में डेल्टा डी लिख दीजिएगा और आर बराबर 1 अपॉन डेल्टा डी, डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। एक कोण बना लीजिएगा, सॉफ्टी खाते हो ना वैसे बना लेना और अपॉन 2a लिख देना और हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज म्यू। म्यू तो समझ रहे हो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट और हमारा आई ऑब्जेक्टिव जहां से हम देख रहे हैं उसके बीच में क्या मीडियम है, वाटर हो सकता है। एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। थीटा जो रेडियस स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया रेडियस, यदि हम ए माने यहाँ पर रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉन्वेक्स लेंस जिससे देख रहे हैं, ऑन वन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन वन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स लेंस, इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्ट को क्या स्टूडेंट्स देख रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहे हैं। तो थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑन वन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी लिख दीजिएगा। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट and objective. And third, which also discussed, when we immerse the water or immersed microscope in the water, that is mu is greater than 1, then resolving power is increases. समझ में आया, पानी में डाल दो उसको, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो अब also students we can write as what is mu sin theta is a numerical aperture। और आइस की भी एक न्यूमेरिकल अपर्चर है। आइस हमने बताया ये भी तो क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके भी तो रिजॉल्विंग पावर है। तो म्यू साइन थीटा इज न्यूमेरिकल अपर्चर, ये भी ले। तो 3 पॉइंट लिख दिए, इतनी प्यारी सी डिफिनेशन लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विच कैन जस्ट रिजॉल्व, ये लिखना है जस्ट रिजॉल्व। अगेन वी फाइंड द आई कैन राइट द जस्ट रिजॉल्व, ये लिख देना विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, और 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ओके, अब लिख देंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में बिल्कुल वही डिफिनेशन लिखनी है, बस यहां पर डिस्टेंस के बजाय एंगुलर लिख देना है, एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर सेपरेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन। उसमें डिस्टेंस लिखना था रेसिप्रोकल, इसमें एंगुलर, क्योंकि टेलीस्कोप में तो इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, तो वहां पर एंगल सेपरेशन लिख देंगे, डिस्टेंस नहीं लिखेंगे बीच का दूर का। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच आर जस्ट रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू द टेलीस्कोप, ये भी लिख देंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स which are just resolved when seen through the telescope. It is defined as, अब also स्टूडेंट क्या लिख दें, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ, यहां पर d लिखा था यहां पर थीटा लिख दीजिए, एंगुलर सेपरेशन r बराबर 1 अपॉन डेल्टा थीटा। अब स्टूडेंट्स ये क्या लिखेंगे, जब उल्टा करेंगे तो a अपॉन 1.22 लैम्डा। इसको याद करने पड़ेगा, थोड़ा थिंक करिए कि a क्या है, इज ए अपर्चर। तो अपर्चर ज्यादा होगा, बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो क्या होगा, टेलीस्कोप का उसका रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा ना। तो सीधे डायरेक्टली रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, अपर्चर पर। और आइस का अपर्चर 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर हो सकता है, 5 पता नहीं, हाँ। तो अपर्चर जो है वो अपर्चर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आइस का अपर्चर थोड़ा स्मॉल होता है तो हमारी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कम होगी ना। तो अपर्चर जितना बड़ा करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ती जाएगी।
So can see write the some topic where A is the this diameter of the objective of the telescope. A is the student यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डायमीटर मान के चल रहे हैं, नॉट ए रेडियस। यदि हम डायमीटर ना लिखे रेडियस में लेते तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, 1.61, कहीं कहीं बुक्स में आपको 0.61 लैम्डा लिखे, तो ए हम यहाँ पर रेडियस ले रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज सच एज डायमीटर ऑफ ए पर डिपेंड कर रहा है। So telescope, so we use the large aperture of objective, then the increase the resolving पावर। यदि आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें, यदि आप बनाना चाहें, तो जैसे मान लिया स्पेक्ट्रा जब हम देखते हैं तो हमारा स्पेक्ट्रा क्या आता है, जैसे मान लिया हमने स्पेक्ट्रा बनाया डिफ्रैक्शन पैटर्न का, तो जब आपको दिखेगा तो इस प्रकार का इसके करस्पॉन्डिंग ये दिखेगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसके इन डार्क ब्राइट फ्रिंज फिर दिखेगी इसके करस्पॉन्डिंग, तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो इसका सेंट्रल ब्राइट जो मिला फ्रिंज का, वो सेंट्रल फ्रिंज को डायमीटर जो मिलेगा वो डिपेंड करेगा 1.22 लैम्डा एफ अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप चाहें तो बना दीजिएगा फिगर जो एनसीईआरटी बुक में बना है, और इतना लिख देंगे तो आपके पूरे 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपने सेपरेट लिखा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स वॉल।